یہ اس زمانے کی بات ہے جب بغداد دنیا کا سب سے روشن اور سب سے پر اسرار شہر تھا۔ علم کے چراغ جلتے تھے، تجارت کے قافلے آتے جاتے تھے، اور دجلہ کا پانی ہزاروں رازوں کو اپنی لہروں میں چھپائے بہتا رہتا تھا۔ بغداد کی سلطنت پر ایک طاقتور اور انصاف پسند خلیفہ حکمران تھا جس کا نام تھا خلیفہ ہارون ثانی۔ اس کا دربار اپنی شان و شوکت میں پوری دنیا میں مشہور تھا۔ سونے کے ستون، ریشمی قالین اور چاروں طرف سے آئے ہوئے وزیر، سپہ سالار اور مشیر۔ اس دربار میں 20 وزیر تھے، ہر ایک دوسرے سے زیادہ ذہین ہونے کا دعوے دار۔ ہر ایک کی زبان پر خلیفہ کی تعریفیں اور دل میں اپنی بڑائی کی خواہش۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک ایسا شخص بھی تھا جو نہ بولتا تھا، نہ دعویٰ کرتا تھا، نہ کسی سے بحث کرتا تھا۔ اس کا نام تھا منصور بن یحییٰ۔ منصور دبلا پتلا، سنولا اور ہمیشہ سادہ لباس میں رہنے والا آدمی تھا۔ دربار میں وہ ہمیشہ سب سے پچھلی صف میں بیٹھتا، آنکھیں نیم بند رکھتا اور ہونٹ ایسے بند جیسے کسی نے سی دیے ہوں۔ دربار کے وزیر اسے تضحیک سے خاموش وزیر کہتے تھے۔ ایک وزیر اکثر کہتا، یہ منصور کس کام کا ہے؟ خزانے سے تنخواہ لیتا ہے اور بس بیٹھا رہتا ہے جیسے پتھر کا بت ہو۔ دوسرا کہتا، شاید خلیفہ کے پرانے کسی احسان کا بدلہ ہے، ورنہ اس جیسا آدمی دربار میں کیوں ہو؟ خلیفہ ہارون ثانی بھی کبھی کبھی کہتا، منصور کبھی تو کچھ بولو، کیا تمہاری زبان پر تالا لگا ہے؟ منصور بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیتا اور خاموش رہتا۔ لیکن ایک شخص جانتا تھا کہ یہ خاموشی کمزوری نہیں ہے۔ وہ شخص تھا خلیفہ کا پرانا خادم بلال۔ وہ اکثر کہتا، حضور میں نے اس خاموش وزیر کو رات کی تاریکی میں ستاروں کو دیکھتے دیکھا ہے۔ جس طرح وہ دیکھتا ہے اس طرح کوئی پاگل نہیں دیکھتا، کوئی دانا ہی دیکھتا ہے۔ خلیفہ ہنستا اور کہتا تھا، اگر وہ اتنا دانا ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ بلال کہتا، حضور جو سب سے زیادہ جانتا ہے وہی سب سے کم بولتا ہے۔ لیکن خلیفہ اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیتا ابھی تک۔ ایک صبح دربار میں ایک عجیب معاملہ آیا۔ بازار کے 2 تاجر جھگڑتے ہوئے دربار میں لائے گئے۔ دونوں کے درمیان ایک نایاب نیلم کے پتھر کا جھگڑا تھا، وہ پتھر جو پوری سلطنت میں صرف ایک تھا۔ پہلا تاجر امیر کپڑوں میں تھا، بات کرنے کا انداز شریفانہ تھا۔ اس نے کہا، حضور یہ نیلم میرے دادا کا تھا اور ان کے دادا کا تھا، آج بازار میں میرے ہاتھ سے گرا اور اس شخص نے اٹھا لیا۔ دوسرا تاجر غریب لباس میں تھا، ہاتھ کالے اور کپڑے گرد آلود۔ اس نے کہا، یہ جھوٹ ہے حضور، یہ پتھر میں نے کان سے نکالا تھا، یہی میرا کاروبار ہے، آج یہ میرے ہاتھ سے گرا اور میں اٹھانے جھکا ہی تھا کہ اس نے چھین لیا۔ دربار میں ہلچل مچ گئی۔ ایک وزیر بولا، حضور امیر آدمی کا دعویٰ سچا لگتا ہے، غریب کی آواز میں ہی جھوٹ ہے۔ دوسرا وزیر بولا، دونوں کو جیل میں ڈالو جب تک خود سچ نہ بتائیں۔ تیسرا بولا، پتھر کو خزانے میں رکھ لو، بعد میں فیصلہ ہوگا۔ خلیفہ نے جھنجلا کر کہا، تم سب وزیر ہو یا بازار کے دکاندار؟ کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو صحیح فیصلہ کر سکے۔ پھر اس کی نظر منصور پر پڑی جو ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھا تھا۔ منصور آج تم بھی کچھ بولو، اگر چپ رہے تو آج ہی دربار سے نکال دوں گا۔ پورا دربار ساکت ہو گیا۔ منصور نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں وہی خاموش چمک تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، حضور اگر اجازت ہو تو میں دونوں سے صرف 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، پوچھو۔ منصور نے پہلے امیر تاجر کی طرف دیکھا اور کہا، جب پتھر گرا تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ امیر تاجر نے کہا، کوئی نہیں، میں اکیلا تھا۔ منصور نے غریب تاجر سے پوچھا، جب پتھر گرا تو آپ کے قریب کوئی اور تھا؟ غریب تاجر نے کہا، جی حضور، ایک بچہ تھا جو گلی کے کونے میں کھیل رہا تھا۔ منصور نے پھر پوچھا، اس پتھر کا رنگ بدلتا ہے کیا؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا، جی ہاں، دھوپ میں یہ گہرا نیلا ہو جاتا ہے۔ منصور نے خلیفہ کی طرف دیکھا اور کہا، حضور اس بچے کو بلوایا جائے۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ کیسی تفتیش ہے؟ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹا بچہ لایا گیا۔ منصور نے اس سے پوچھا، بیٹا کیا تم نے کسی کو پتھر گراتے دیکھا؟ بچے نے معصومیت سے کہا، جی حضور، وہ صاحب جن کے کپڑے اچھے تھے انہوں نے پتھر گرایا تھا۔ پھر وہ دوسرے صاحب کو مارنے لگے جو اٹھانے جھک رہے تھے۔ پورا دربار چپ ہو گیا۔ منصور نے کہا، حضور بچے کی آنکھیں سب سے سچی ہوتی ہیں، جھوٹ بولنا انہیں ابھی نہیں آیا۔ امیر تاجر کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ خلیفہ نے اعلان کیا، فیصلہ ہوا، پتھر اسی کا ہے جو سچا ہے۔ دربار میں تالیاں گونج اٹھیں۔ خلیفہ نے مسکرا کر کہا، منصور تم وہ آنکھ ہو جو اندھیرے میں بھی دیکھتی ہے۔ وزیروں کے چہرے اتر گئے، لیکن منصور اپنی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ نہ داد مانگی، نہ خوشی کا اظہار، نہ کوئی بڑا دعویٰ، بس خاموشی۔
और यही खामोशी सबसे बड़ी आवाज़ थी। मंसूर के इस पहले फैसले के बाद दरबार की फिजा बदल गई। वजीर अब इसे तज़हीक से नहीं बल्कि डर की नज़र से देखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये खामोश आदमी सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है और सब कुछ जानता है। लेकिन असल आजमाइश अभी बाकी थी। ये एक रात बगदाद के शाही ख़जाने से एक ऐसी चीज़ गायब हो गई जिसकी खबर सुनकर खलीफा का रंग उड़ गया। वो चीज़ थी सल्तनत की मोहर, वो सोने की मोहर जिस पर खलीफा का नाम और सल्तनत की अलामत थी। जो भी इस मोहर को इस्तेमाल करे वो खलीफा के नाम से हुक्म जारी कर सकता था, झूठे फरमान लिख सकता था, सल्तनत के नाम पर धोखा दे सकता था। इस मोहर का गायब होना सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये पूरी सल्तनत के लिए खतरा था। सुबह होने से पहले ही खबर फैल गई। खजाने के निगरान, पहरेदार, चाबियां रखने वाले गुलाम, सबको दरबार में तलब किया गया। दरबार में अभी रोशनी कम है, चिराग जल रहे हैं। खलीफा हारून सानी तख्त पर बैठा है, चेहरा सुर्ख है, आंखों में गुस्सा और खौफ दोनों है। चारों तरफ वजीर और सिपा सालार खड़े हैं, हर चेहरे पर खौफ है। खलीफा: कौन है जिसने ये जुर्रत की? मेरी मोहर मेरे ही खजाने से चोरी हो गई और मेरे पहरेदार सोते रहे। पहला पहरेदार: हुजूर, हम सारी रात जागते रहे, कोई अंदर नहीं आया। दूसरा पहरेदार: हुजूर, चाबियां मेरे पास थीं, मैंने उन्हें एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा। खजाने का निगरान: हुजूर, कल रात मैंने खुद मोहर को उसकी जगह रखा था, सुबह देखा तो गायब थी। दरबार में हर वजीर एक दूसरे को देख रहा है, सरगोशियां हैं। पहला वजीर: हुजूर, मेरा मशवरा है कि तमाम गुलामों और नौकरों को जंजीरों में बांधा जाए, मार पीट से सच निकलवाया जाए। दूसरा वजीर: हुजूर, मोहर किसी दुश्मन सल्तनत का जासूस चरा कर ले गया होगा, फौज भेजी जाए। तीसरा वजीर, जो खजाने के सबसे करीब बैठता था, नाम वजीर जियाद: हुजूर, ये काम बाहर के आदमी का नहीं हो सकता, जरूर कोई अंदर का आदमी है जिसने ये किया। खलीफा का गुस्सा और बढ़ जाता है। खलीफा: तुम सब वजीर हो या तोते? हर मसले का हल बस मारपीट और फौज है? खलीफा की नज़र मंसूर पर पड़ती है, जो अपनी जगह पर खामोश बैठा है, आंखें मामूल की तरह आधी बंद है, लेकिन गौर से देखने पर लगता है कि वो सबको, हर चेहरे को, हर हरकत को देख रहा है। खलीफा: मंसूर। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। मंसूर: जी हुजूर। खलीफा: कुछ कहना है? मंसूर: हुजूर, अगर इजाज़त हो तो मैं इस मामले को देखना चाहता हूँ, लेकिन अपने तरीक़े से, बग़ैर किसी को तकलीफ़ दिए। वज़ीर एक दूसरे को देखते हैं, कुछ हंसना चाहते हैं, लेकिन पिछले वाक़े के बाद कोई हिम्मत नहीं कर सकता। खलीफा मंसूर की आंखों में देखता है: क्या चाहिए तुम्हें? मंसूर: हुजूर, मुझे चाहिए कि कोई भी खजाने का कमरा साफ ना करे, कोई चीज़ इधर उधर ना हो, और आज का दरबार ख़त्म होने के बाद तमाम वज़ीरों, सिपा सालारों और निगरानों को एक एक करके मेरे पास भेजा जाए, अकेले अकेले। वज़ीर जियाद: क्या हम सब मशकूक हैं? मंसूर सीधे जियाद की आंखों में देखते हुए: हुजूर की मोहर गायब है, उस वक्त हर वो शख्स मशकूक है जो खजाने के करीब था। जियाद का चेहरा एक लम्हे के लिए बदलता है, फिर वो सूर्य देखता है, कोई और नहीं देखता। बगदाद के महल का खजाना खाना, बड़ा कमरा, दीवारों के साथ संदूक रखे हैं। एक जगह एक खाली तकिया नुमा जगह है जहां महर रखी जाती थी। मंसूर अकेला कमरे में है। वो कोई जल्दी नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, हर चीज़ को देखता है लेकिन छूता नहीं। दीवारों को देखता है, फर्श को देखता है, खिड़की को देखता है, फिर वो खिड़की के पास रुक जाता है। खिड़की के नीचे फर्श पर एक बहुत हल्का सा निशान है, जैसे कोई चीज़ खींची गई हो। मंसूर घुटनों के बल बैठता है और उसे गौर से देखता है, फिर उठता है, बाहर आता है और अपने खादिम बिलाल से कहता है: बिलाल, क्या तुमने रात को कोई आवाज़ सुनी? हुजूर, रात के पिछले पहर मुझे एक बार कुछ सरसराहट सुनाई दी थी, लेकिन मैंने समझा बिल्ली होगी। बिल्ली? किस तरफ से? खजाने की तरफ से हुजूर। मंसूर कुछ नहीं कहता, बस हल्का सा मुस्कुराता है। मंसूर एक कमरे में बैठा है, सामने एक चराग है। बारी बारी वजीर, सिपहसालार और निगरान आते हैं। मंसूर हर एक से सिर्फ चंद सवाल करता है, आंखों में देखता है और फिर जाने देता है। जियाद की बारी आती है, वो अंदर आता है, चेहरे पर इत्मीनान का ढूंग है। वजीर जियाद: मंसूर, मुझसे क्या पूछना है? मैं तो खजाने का निगरान भी नहीं हूँ। मंसूर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए: जियाद साहब, आप कल रात कहाँ थे? जियाद: अपने कमरे में, सो रहा था। मंसूर: सारा वक्त? जियाद: एक लम्हे की हिचकिचाहट। हाँ, सारा वक्त। मंसूर:
आपके जूते देख सकता हूँ? ज़ियाद चमकता है। ज़ियाद, क्या जूते? क्यों? मंसूर, बिल्कुल पुरसकून, बस ऐसे ही। ज़ियाद कुछ देर रुकता है, फिर पाँव आगे करता है। मंसूर नीचे झुककर देखता है। जूते के तले पर कुछ है, एक खास तरह की मिट्टी, वही जो खजाने की खिड़की के नीचे होती है। मंसूर उठता है। मंसूर, शुक्रिया ज़ियाद साहब, आप जा सकते हैं। ज़ियाद उठता है और चला जाता है। बाहर निकलकर वो एक लम्हे के लिए रुकता है और सोचता है कि इसने जूते क्यों देखे। फिर खुद को तसल्ली देता है कि कुछ नहीं होगा और चला जाता है। कमरे में मंसूर चिराग की रोशनी में बैठा है। इसके चेहरे पर कुछ नहीं है, न खुशी न गम, बस वही खामोश सुकून। खलीफा हारून सानी अकेला बैठा है, परेशान है। मंसूर आता है और सर झुकाकर कहता है, हुजूर, मुझे मालूम हो गया है कि मोहर कहाँ है और किसने चुराई है। खलीफा उछल कर उठता है। कौन है, बताओ फौरी। हुजूर, अभी नहीं। अगर अभी ऐलान किया तो वो शख्स मोहर को छुपा देगा या तबाह कर देगा। मुझे एक रात और चाहिए। क्या करोगे इस एक रात में? एक जाल बिछाऊंगा हुजूर, बिल्कुल ऐसे जैसे सयाद मछली पकड़ने से पहले जाल को पानी में फेंकता है। दरबार भरा हुआ है। खलीफा तख्त पर है। सब वजीर, सिपहसालार और निगरान मौजूद हैं। हर कोई जानना चाहता है कि मोहर का क्या हुआ। मंसूर अपनी जगह पर है, खामोश, पुरसुकून। खलीफा दरबार को देखते हुए, आज रात एक अहम खबर आई है। मुझे इत्तला मिली है कि मोहर शहर के बाहर बेची जाने वाली है। अगर आज रात हमने कार्रवाई ना की तो मोहर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दरबार में हलचल मच जाती है। मंसूर चुपके से एक तरफ से वजीर ज़ियाद को देखता है। ज़ियाद का चेहरा एक लम्हे के लिए बदलता है। वो बेचैन हो जाता है। फिर वो आहिस्ता से अपने साथ बैठे एक आदमी को कुछ कहता है। मंसूर देखता है कि उसने क्या कहा। आवाज़ नहीं आती, लेकिन होंठ पढ़े जाते हैं। ज़ियाद ने कहा, जल्दी करो, आज रात से पहले। मंसूर आहिस्ता से उठता है और खलीफा के पास जाकर आहिस्ता से कहता है, हुजूर, अभी इसी वक्त ज़ियाद के कमरे की तलाशी ली जाए। सिपाही दरवाज़ा खोलते हैं। ज़ियाद पीछे पीछे आता है। चेहरे पर बनावटी इत्मीनान है। ज़ियाद, ये क्या है? मेरे कमरे में क्यों? मैंने क्या किया है? सिपाही हर तरफ देखते हैं। एक संदूक, कपड़े, किताबें, कुछ नहीं मिलता। ज़ियाद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। ज़ियाद, क्या मिला? मंसूर खामोशी से कमरे में दाखिल होता है। वो सीधा खिड़की की तरफ जाता है। खिड़की के पास एक पुरानी ईंट है जो ज़रा ढीली लगती है। मंसूर उसे हाथ लगाता है। ईंट निकल आती है। अंदर एक कपड़े में लिपटी हुई चीज़ है। मंसूर कपड़ा खोलता है। अंदर सल्तनत की सोने की मोहर है। दरबार के सिपाही एक कदम पीछे हट जाते हैं। ज़ियाद का चेहरा पत्थर हो जाता है। ज़ियाद, ये मैंने नहीं रखी। ये किसी ने यहाँ रखी है, मुझे फंसाने के लिए। मंसूर, ज़ियाद साहब, आपके जूते पर वही मिट्टी है जो खजाने की खिड़की के नीचे है, और आपने आज दरबार में अपने आदमी को कहा कि जल्दी करो, आज रात से पहले। यानी आप मोहर को कहीं और मुंतकिल करना चाहते थे। ज़ियाद के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। ज़ियाद, हुजूर, मुझे माफ़ कर दें। मुझे एक दुश्मन सल्तनत के जासूस ने लालच दिया था। मैंने मोहर चुराई और आज रात उन्हें देनी थी। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। खलीफा की आंखों में गुस्सा है, लेकिन वो पहले मंसूर की तरफ देखता है। खलीफा, मंसूर, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मंसूर, हुजूर, जूते कभी झूठ नहीं बोलते। जहां आदमी जाता है मिट्टी उसके साथ आ जाती है, और आंखें भी झूठ नहीं बोलती। जब आपने कहा कि मोहर आज रात बेची जाएगी तो ज़ियाद ने अपने आदमी को इशारा किया। वो इशारा ही उसकी गवाही थी। ज़ियाद को सज़ा दे दी गई है। महर वापस आ गई है। दरबार में एक नई रोशनी है। खलीफा हारून सानी तख्त पर बैठा है और मंसूर को देख रहा है। खलीफा, मंसूर, आज मैं तुम्हें सल्तनत का सबसे बड़ा मुशीर बनाता हूँ, जो भी मांगो मिलेगा। मंसूर आगे बढ़ता है, सर झुकाता है। हुजूर, मेरी एक ही दरख्वास्त है। खलीफा, क्या? मंसूर, मुझे मेरी खामोशी का हक दिया जाए। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। खलीफा एक लम्हे की खामोशी के बाद फिर मुस्कुराकर, मंसूर, तुमने मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया। जो सबसे ज़्यादा ताकत का हकदार हो वही सबसे कम मांगता है। मंसूर, हुजूर, जो बहुत बोलता है वो अक्सर कम जानता है, और जो खामोश रहता है वो सब कुछ देखता रहता है। खलीफा ने सर हिलाया और कहा, खलीफा, आज से तुम दरबार में जब चाहो बोलो और जब चाहो खामोश रहो, लेकिन जब बोलो तो हर लफ्ज़ सोने से भारी हो। दरबार में तालियां गूंज उठीं। मंसूर ने सर झुकाया और वापस अपनी जगह चला गया। वही पुरानी जगह
वही सादा कपड़े, वही आधी बंद आंखें, लेकिन आज इसके इर्द गिर्द की फ़ज़ा बदल चुकी थी। मंसूर अकेला बैठा है, दिजला का पानी बह रहा है, शाम की रोशनी पानी पर पड़ रही है। बिलाल पास आता है और बैठ जाता है। बिलाल, हुजूर, आज आपने फिर सबको हैरान कर दिया। मंसूर, बिलाल, मैंने क्या किया? मैंने बस वो देखा जो सबके सामने था। बिलाल, लेकिन किसी ने नहीं देखा। मंसूर, क्योंकि सब बोलने में मसरूफ़ थे। जो बोलता रहता है वो देखना भूल जाता है। खामोशी आंखें खोलती है बिलाल। बिलाल कुछ नहीं कहता। दोनों दिजला को देखते हैं। पानी बहता रहता है खामोशी से, लेकिन सब कुछ अपने साथ लिए हुए। आज भी बगदाद की पुरानी गलियों में जब कोई खामोश मगर ज़हीन आदमी नज़र आता है तो लोग कहते हैं, देखो, शायद कोई और मंसूर है, खामोश मगर सब कुछ जानने वाला। असल अक्ल शोर में नहीं बल्कि खामोशी में छुपी होती है। जो कम बोलता है वो ज़्यादा देखता है, और जो ज़्यादा देखता है वो ही सच तक पहुंचता है।